Good morning, students. My name is Deepa Garg, SST subject teacher. Today, I will teach you chapter 16, Life in Town and Villages. तो लाइफ होता है हमारा जीवन, यानी कि जीवन हमारा कैसा टाउन और विलेज का, ग्रामीण और शहरी जीवन के बारे में आज हम चैप्टर 16 में डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आई होप सभी बच्चों ने चैप्टर 15 तक अपना रिटन वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। जैसे ही आपका हाफ ईयरली एग्जाम तक का सिलेबस है हमारा चैप्टर 18 तक वर्क करने के बाद आपको कॉपी सबमिट करनी है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइमली अपनी रिटन वर्क को ओके करके चलें, साथ साथ लर्न करते चलें। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। As you have read that our Harappan people were essentially urban in nature, the decline of the Harappan civilization coincided with the rise of the Aryans. However, they were rural in nature and liked to live in village as their main profession were agriculture and herding. तो देखिए, जैसा कि आपने पहले भी स्टडी करा है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो मूलतः नगरीय थे। हड़प्पा सभ्यता का पतन व आर्यों का उदय एक साथ हुआ था, जबकि आर्य ग्रामीण थे और गांव में रहना पसंद करते थे। उनका मुख्य व्यवसाय खेती या पशुपालन था। एग्रीकल्चर हमारी खेती और हर्डिंग होता है पशुपालन। नेक्स्ट हमारा आता है आगे सेकंड, अर्बेनाइजेशन, यानी कि जो सेकंड होता है दूसरे नंबर का नगरीकरण हमारा क्या हुआ है। तो अनदर पीरियड डाउन in the development and progress of town from about 6th century BC to 4th century BC. This period is called the age of Buddha because Buddhism flourished during this age. This is the time when we hear about urbanization again and when town and cities were again. Some of the important towns during this era included Ayodhya, Kaushambi, Vaishali, Rajgiris, Patliputra, Sarvasti, etc. The process of a place transforming into a town and then into a city is a long drawn one because a village grows into a town which ultimately grows into a city. However, some towns and cities are hunted out of necessity, like capitals and cities of this period had some characteristic features. If not a large part of a city was planned with roads, streets, drains, fortification, temples, places and other residential and commercial complex. तो नगरों का निर्माण और विकास की दूसरी छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ। यह समय अवधि बुद्ध का युग कहलाई थी। ये जो बुद्ध यानी कि बुद्ध का युग कहलाई थी ये, क्योंकि इस युग में बौद्ध धर्म सशक्त हुआ। यह वह समय था जब हम पुनः नगरीकरण के बारे में सुनते थे। अब नगरों व शहरों का पुनर्निर्माण हुआ। इस युग के कुछ महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से थे? अयोध्या, कौशाम्बी, वैशाली, राजगीर जिसे राजगृह भी कहते थे, पाटलिपुत्र और श्रावस्ती भी थे। तो गांव का कस्बों में और कस्बों का गांवों में, कस्बों का नगरों में परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि गांव धीरे धीरे पहले कस्बों में और अंततः नगरों में विकसित होते थे, जबकि कुछ कस्बे व नगर आवश्यकता के लिए बसाए जाते थे, जैसे राजधानी। इस युग के नगरों में कुछ विशिष्ट विशेषताएं थी। यदि संपूर्ण नहीं माने तो भी नगरों का लगभग एक विशाल भाग योजनाबद्ध था, जिसमें सड़कें, गलियां, जल निकासी व्यवस्था, किलेबंदी, मंदिर, मठ, महल और अन्य आवश्यक व व्यावसायिक स्थान भी होते थे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा लाइफ इन टाउन, तो यानी कि नगरीय जीवन। तो नगरीय जीवन हमारा कैसा था? नंबर ऑफ विलेज ग्रो इनटू अ टाउन बाय वर्चुअल
of increase in population and size. In addition to the another reason, for example, some place grew into town because of some particular art craft trade. For example, a village situated on some river or sea beach grew into an important trade center. In the same way, some village grew into town because they specialized in certain crafts like metalwork, embroidery, weaving, etc. Some towns become important because they were made center of administration. Similarly, some towns were important religious centers. In order to meet varying needs of the people, a lot of new occupation came into being. Some of the important occupations in towns included weaving, dyeing of cloth, gold work, iron work, silver work, carpentry, pottery, medical science, transport, art and music, fairs, etc. Many towns were famous for their respective crafts. For example, Gandhara was famous for woolen cloth, Varanasi for silken cloths, and Sividesha or for cotton cloth. This period has two special points. One, many occupation came to be recognized as caste. तो बढ़ती जनसंख्या व अन्य कारणों से एक बड़ी संख्या में गांव नगरों में परिवर्तित हो गए थे। उदाहरण के लिए कुछ गांवों में नदियों व समुद्रों के किनारे बसे थे। कला, शिल्प और व्यवसाय के कारण नगरों में परिवर्तित हो गए थे और महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्रों के रूप में आगे वो उभर कर भी आए। इसी प्रकार है कुछ गांव अपनी विशिष्ट शिल्प कलाओं, जैसे धातु का कार्य है हमारा, इस तरह के कुछ भी काम ले लिया हमने, धातु का कार्य, कढ़ाई, बुनाई आदि कारणों से नगरों में परिवर्तित हो गए। कुछ नगर प्रशासनिक केंद्र होने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इस प्रकार कुछ नगर धार्मिक केंद्र भी बन गए थे। इसी के साथ लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में नए व्यवसाय अस्तित्व में आए। नगरों के कुछ महत्वपूर्ण व्यवसाय बुनाई, कपड़ों की रंगाई, सोने का कार्य, लोहे का कार्य, चांदी का कार्य, बढ़ाईगिरी, बर्तन बनाने का कार्य, चिकित्सा, विज्ञान, यातायात, कला व संगीत, पूजा करवाने का कार्य पुजारी थे। बहुत से नगर अपनी शिल्प कलाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उदाहरण के लिए गांधार ऊनी वस्त्रों के लिए, वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए और शिविदेश सूती वस्त्रों के लिए फेमस हो गए थे। वाराणसी जिसे बनारस आज भी अपने रेशमी वस्त्रों के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छे से फेमस है। तो दिस पीरियड हैज टू स्पेशल पॉइंट। तो इस पीरियड के दो स्पेशल पॉइंट भी रहे हैं। कौन कौन से स्पेशल बिंदु थे हमारे? पहला, बहुत से व्यवसाय जाति बन गए थे। Goldsmith, washerman, etc. Some people adopted other profession. Washerman, the traditional wand system. For example, many Kastria started to be study religious. The cultivate and land. Many Brahmins started trade and joined army, and many Vaishyas come army. An important feature of this period is the formation of organization of the people belonging to occupation. This organization is called the Sangha. तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या हुआ, हमारे जो दो बिंदु आए थे, बहुत से व्यवसाय जाति बन गए, जैसे सुनार, धोबी आदि। कुछ लोगों ने दूसरे व्यवसायों को अपना लिया जिसकी अनुमति पारंपरिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार नहीं थी। उदाहरण के लिए बहुत से क्षत्रियों ने धार्मिक लेखों का अध्ययन कर कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया था। बहुत से ब्राह्मणों ने व्यापार करना व सेना में भर्ती होना प्रारंभ कर दिया था और बहुत से वैश्य सेना में भर्ती हो गए थे। These traders in town carried on long distance trade different articles, not only within the तो इस युग की एक विशेषता संगठनों का निर्माण थी जो एक व्यवसायों से जुड़े लोगों द्वारा बनाए गए थे। ये संगठन संघ कहलाते थे। ये संगठन हमारे क्या कहलाते थे? ये संगठन हमारे संघ कहलाते थे, जो इनसे जुड़े लोगों की भलाई करने में
इनसे जुड़े लोगों की भलाई व आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य करते हुए उत्पादों के विक्रय व आपसी झगड़ों को के निपटारे में भी सहयोग करते थे। बहुत से मामलों में वे सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं की भी देखरेख करते थे। प्रत्येक संगठन एक अध्यक्ष द्वारा निरीक्षित किया गया था, जिसे प्रमुख ज्येष्ठिका अथवा प्रमुख ज्येष्ठिका अथवा श्रेष्ठी कहा जाता था। The traders in town carried a long distance trade in different article, not only within the। तो क्या था इसमें, ये कहते थे नगरों में व्यापारी अपनी विभिन्न वस्तुओं के व्यापार के लिए दूर दूर जाते थे, सिर्फ अपने देश के ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में व्यापार करते थे। उनके व्यापारिक संबंध जावा, श्रीलंका, वर्मा, सुमात्रा, मध्य एशियाई देशों आदि के साथ थे। दूसरे देशों के साथ व्यापार भूमि और जल दोनों ही मार्गों द्वारा किया जाता था। शिल्पकारों की तरह व्यापारियों ने भी संघों की स्थापना की थी जो उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे। इनके अध्यक्ष जो थे वो कहलाते थे हमारे सेठी, और उनके अध्यक्ष सेठी और श्रेष्ठी कहलाते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा लाइफ इन विलेज। अब हमारा ग्रामीण जीवन के बारे में डिस्कशन करेंगे। द नंबर ऑफ विलेज हैड गॉन अप थ्रू द एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। However, quality of life in village had not changed much. The villagers sat together to solve their disputes different. They also constructed roads, public places, and other public utilities with the corporation. तो जो ग्रामीण जीवन था हमारा, संपूर्ण भारत में गांवों की संख्या बढ़ गई। जब गांवों के जीवन स्तर में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुए तो ग्रामवासी के झगड़ों व मतभेदों को साथ साथ बैठकर सुलझाते थे। वे आपसी सहयोग से सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और जन उपयोगी सेवाओं का निर्माण भी करवाते थे, या विभिन्न प्रकार के जैसे अनाज, दालें, सब्जियां आदि चीजें उगाई जाती थी। फ्रोज वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल्स आदि चीजें उगाई जाती थी। इस युग में हम किसी बंधुआ मजदूर के बारे में नहीं सुनते थे। तो द बेटर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन द लार्जर प्रोड्यूस, सो मेनी पीपल टर्न टुवर्ड अदर क्राफ्ट्स इन द विलेज। कॉटेज इंडस्ट्रीज स्टार्टेड फॉर सच क्राफ्ट्स लाइक वीविंग, कारपेंट्री, मेकिंग, रॉप मेकिंग। तो ग्रामीणों को कृषि का बेहतर ज्ञान था, जिसके फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा बहुत अधिक थी। इसलिए बहुत से लोग अन्य हस्तकलाओं जैसे बुनाई, बढ़ाईगिरी, टोकरी बनाना, रस्सी बनाना आदि से जुड़ने लगे। कुछ शिल्पकार नगरों में बस गए थे, जिस कारण नगरों की जनसंख्या बढ़ गई थी। The village was under the supervision of headman called ग्राम भोजक। क्या कहलाते थे वो? ग्राम भोजक कहलाते थे। तो जो ग्राम भोजक कौन था? मुखिया। तो ग्राम भोजक मुखिया की देखरेख में होते थे। वह गांव के क्रियाकलापों की एक समिति बनाते थे। समिति की सहायता से कराते थे। उस पर भूमि कर संग्रह करने का भी उत्तरदायित्व होता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन। तीव्रीकरण यानी कि तेजी से होने वाला। तो कृषि का इंटेंसिफिकेशन क्या था हमारा? तो बेटर नॉलेज एंड टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर मोड इम्पॉसिबल टू रीप रिच क्रॉप ऑफ डिफरेंट थिंग्स। आल्सो मोर लैंड वॉज बॉट अंडर कल्टिवेशन आफ्टर द क्लियरिंग ग्रासलैंड एंड द फॉरेस्ट। तो खेती का बेहतर ज्ञान व कृषि के औजारों ने विभिन्न प्रकार की अच्छी फसलों के उत्पादन को संभव बना दिया था। क्या संभव बना दिया था? खेती का बेहतर ज्ञान और कृषि के औजारों को विभिन्न प्रकार की अच्छी फसलों के उत्पादन में संभव बना देता है। घास के मैदानों व जंगलों को साफ करके अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। नए प्रकार के जो अनाज थे
वे अन्य वस्तु उगाई जाने लगी। परिवार के सभी सदस्य खेतों में साथ साथ काम करते थे। कुछ परिवार फसल बंटवारा व्यवस्था या किराए पर भूमि देकर अन्य कार्यकर्ताओं से कार्य करते थे, जिन्हें वे दस्यु कहते थे। चरागाह भूमि गांव के खेतों से दूर होती थी। यह एक सार्वजनिक स्थान था जिस पर कोई भी अपने पशुओं को चरा सकता था। अब केस स्टडी आती है हमारी तमिलनाडु की। केस स्टडी यानी कि प्रकरण पर उस पर अध्ययन करना डीपली। तो केस स्टडी कहाँ की कर रहे हैं हम? तमिलनाडु की। इन द टेरिटरी व्हाट इज नोन एज तमिलनाडु नाउ देयर रूल्ड देयर 3 dynasties in different place between the period 200 BC to 300 AD. These 3 dynasties were the Chols, the Pandyas and the The area of the influence of the Chera was essentially Kerala with a small area now forming a part of Tamil Nadu. तो वह क्षेत्र जो अब तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है वह 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के मध्य 3 विभिन्न वंशों ने विभिन्न स्थानों पर शासन किया। ये वंश कौन कौन से थे? चोल, पांड्या और चेर थे। चेर वंश के शासन में मूलतः केरल का क्षेत्र आता था, जिसमें वर्तमान तमिलनाडु का एक छोटा सा क्षेत्र भी सम्मिलित था। नेक्स्ट आता है हमारा चोल किंगडम। अब ये चोल वंश जो था उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। तो द चोल किंगडम वॉज लोकेटेड बिटवीन पेनार एंड द वेलूर रिवर अराउंड द कावेरी रिवर। इट्स कैपिटल वॉज It became to Timelight in area 200 BC when its rule Elarada। तो देखिए कावेरी नदी के चारों तरफ पेन्नार तथा वेलूर नदियों के मध्य चोल राज्य स्थित था। इसकी राजधानी थी पुहार। वर्तमान में जो कावेरी पट्टनम है यह लगभग 200 BC पूर्व चर्चा में आया, जब इसके शासक इलेरा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की तथा 50 वर्षों तक यहाँ शासन किया। दूसरे महत्वपूर्ण कार्यकला थे चोलों ने एक विशाल व मजबूत जल सेना व्यवस्थित की थी। वे गंगा के मुख की ओर से जल यात्रा करते थे। चोल वंश ने उन्नति की, पर 30 शताब्दी ईस्वी पूर्व असक्षम शासकों के कारण इसका पतन हो गया था। नेक्स्ट आता है हमारा पांड्या किंगडम। तो पांड्या का जो वंश था उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। द पांड्यास किंगडम कंप्राइज द त्रिवंतली, रेमांड एंड मदुरई इन द प्रेजेंट डे तमिलनाडु। इट्स कैपिटल वॉज मदुरई। द पांड्या किंगडम वॉज द पांड्या राज्य में वर्तमान तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, रामनाद और मदुरई क्षेत्र शामिल थे। इसकी राजधानी थी मदुरई। पांड्या राज्य एक समृद्ध राज्य था जो मोतियों के लिए जाना जाता था। किसके लिए जाना जाता था? मोतियों के लिए जाते थे। रोम्स के साथ इसके व्यापारिक संबंध थे। पांड्या शासक व राज्य के लोग वैदिक अनुष्ठानों के प्रति श्रद्धा रखते थे और वे ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान भी देते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा चेरा किंगडम, यानी कि चेर वंश जो था उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। द चेरा किंगडम comprised the present day state of Kerala with only a small part of Tamil Nadu. It was a prosperous kingdom. It maintained trade relations with other kingdoms and civilization. One of its important rulers was Sengutvan is the important point, also known as the Red Chair, who is said to have invaded the northern India. The kingdom too declined in the 2nd century AD। तो चेर राज्य में वर्तमान केरल व तमिलनाडु राज्यों का छोटा सा भाग एक सम्मिलित था। यह एक समृद्ध राज्य था। इसके दूसरे राज्यों में सभ्यताओं के व्यापारिक संबंध थे। इस वंश के मुख्य शासकों में एक था जो हमारा सेंगुटवन था और दूसरा था लाल चेर के नाम से जाना जाता था, और जिसे उत्तरी भारत पर आक्रमण करने वाला भी कहा गया था। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इस राज्य का अंत भी हो गया था।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना के स्रोत क्या थे हमारे। तो द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द चोल्स, पांड्यास एंड चार्ल्स इंक्लूड द Jatka tales and the Indica. Ashoka's inscription also mention about them. Pliny, a Roman historian too, has written about them. An important source of these three kingdoms is also the Sangam literature, about which you will read in the following lesson. तो चोल पांड्या व चेर वंश की जानकारी के मुख्य स्रोत जातक कथा तथा इंडिका थी। अशोक के अभिलेखों से भी इनके बारे में वर्णन किया जा सकता है। रोम के इतिहासकार प्लिनी ने भी इनके बारे में लिखा है। इन तीनों राज्यों के बारे में सूचना का एक मुख्य स्रोत संगम साहित्य भी था, जिनके बारे में आप आगे लेसन्स में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहीं एंड होता है। आई थिंक सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे, बुक से रीड करेंगे, और इसके नेक्स्ट टर्न पर आपको चैप्टर 16 के नोट्स सेंड किए जाएंगे। सभी को अच्छे से अपनी नोटबुक में कंप्लीट वर्क करना है। थैंक यू एवरीवन।